مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اقرار گناہ کرتے ہیں تو تب آسمانی باپ کی خوشی اور آسمان پر اس بات کی خوشی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ آج بائبل میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے کیسے شادمانی، کیسے اختیار اور کیسے رہائی پا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 15 باب اور اس کی 21 آیت میں سے ہم دیکھیں گے، بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اقرار گناہ کا ایک ہمیں عنصر نظر آتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، یسوع المسیح نے جس بات پر سکھایا اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی۔ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، اپنی وراثت میں سے جو ان کا بنتا تھا وہ لے لیا، تو چھوٹے بیٹے نے کیا کیا، اپنا سارا مال بد چلنی میں جو ہے وہ اس نے اڑا دیا، اپنے باپ سے دور چلا گیا۔ اس نے اپنا مقام، اپنی جگہ، اپنا گھر، اپنے باپ سے تعلق کو ختم کر کے اپنی جو زندگی ہے وہ بد چلنی میں اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ دور دراز ملک میں چلا گیا تو اس نے کیا کیا، اپنے مال کو اڑانا شروع کر دیا، لیکن جب اس کا مال ختم ہو گیا تو اس کے پاس روٹی کے لیے بھی کوئی چیز نہ بچی۔ تب اس نے کیا کیا، کسی کے ساتھ رہ کر کام کرنا شروع کیا، اور کسی شخص کے سور چراتے ہوئے اس نے کہا کہ جو پھلیاں یہ کھائیں کہ مجھے یہ کھانے کی اجازت دے دو، لیکن اسے وہ بھی کھانے کی اجازت نہ دی گئی۔ لیکن وہاں مشکلات میں زندگی بسر کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ میں تو اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور جو نوکر میرے باپ کے گھر میں رہتے تھے ان کو تو افراد کے ساتھ روٹی ملتی تھی، اور میں یہاں پھلیاں جو سور کھاتے ہیں ان کے کھانے کے لیے بھی منت کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ نہیں ملتی۔ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، جب اسے کچھ نظر نہیں آتا، تب اسے اپنے باپ کا گھر نظر آتا ہے، تب اسے اپنے باپ کی یاد آتی ہے، اور تب وہ کیا کرتا ہے، روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ پھر نہ گناہ کرنے کا عہد کرنا، ندامت، شرمندگی اور گناہوں سے کنارہ کشی کرنا۔ اور جب مصرف بیٹے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، کنارہ کشی کی، اپنی چال چلن کو درست کرنے کا سوچا، پچھتایا اپنے گناہوں پر، تب اس نے اپنے باپ کے پاس آنے کا رخ کیا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں، جب ہم نادم ہوتے ہیں، جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، تب آسمانی باپ ہمیں اپنی حضوری کا وہ حصہ دیتا ہے جو ہم سے کبھی بھی جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کلام مقدس میں جب ہم مقدس یسایہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں باپ کی محبت، باپ کی شفقت، باپ کے رحم کا ایک اتنا خوبصورت جو بات نظر آتی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور وہاں پر آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں نے تیرے گناہوں کو بادل کی مانند اور تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند مٹا ڈالا،
मेरे पास वापस लौटा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हम चाहे जितनी भी गुनाह भरी ज़िंदगी में हो, चाहे हमारे गुनाह कितने ही कर्मज़ी क्यों ना हो, वो हमें माफ़ करने वाला, रहम करने वाला और हम पर शफ़क़त करने वाला बाप है। और मुशर्रफ बेटे ने जब अपनी ज़िंदगी बद चलने में गुजारी है, जब उसने अपना सारा मालो मता उड़ा दिया, तब उसे अपने बाप का घर नज़र आया और तब उसे वो बात याद आई जो यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई कि मेरे पास वापस लौटा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तब उसे अपने बाप का घर याद आया और कहने लगा कि मेरे बाप के घर में नौकरों को इफ़रात के साथ रोटी मिलती है और मैं यहाँ इतनी मुश्किल भरी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और मेरे अजीज़ों, लिखा है जब वो उठकर वापस जाता है तो जाने के बाद वो अपने बाप के पास जाता और कहता है, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। सबसे पहले जब वो अपने बाप के पास जाता है, बाप की हजूरी में पेश होता है, तो वो क्या कहता है कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ। जब उसने इकरार किया, जब उसने इस बात को माना, जब उसने एक अच्छा नौकर बनकर बाप की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया, तो बाप ने मेरे अजीज़ों किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखा कि गुनाह कितने थे, मेरा बेटा दूर कितनी देर रहा, मेरे बेटे ने जायदाद का हिस्सा कितना ले लिया, मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ अपने हिस्से का लेकर उड़ा दिया, तो अब वो मेरे पास आया जब कुछ नहीं बचा। तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर बाप की मोहब्बत देखें। लिखा है कि बाप ने अपने नौकरों से कहा, इसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ। सबसे पहले जब हम उसके चरणों का, उसके कदमों का इंतखाब करते हैं, तो बाप हमारी शर्मिंदगी को, हमारी बरहंगी को अपने मुक़द्दस लिबास से, रूहुल कुद्दस का लिबास देकर हमें ढांपता, हमें अपने शामियाना में छुपाता और अपने पर्दा में हमें छुपाता है। ये है बाप की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त। हम गुनाहगार ही क्यों ना हो, वो हम पर रहम करता है। और लिखा है कि नौकरों को हुक्म दिया क्या कि इसे अच्छा से अच्छा लिबास पहनाओ। बेटा नौकर बनने के लिए गया, लेकिन बाप ने अपने बेटे को दर्जा बेटे ही का दिया और दूसरे नौकरों को हुक्म दिया कि इसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ। और उसके बाद जो दूसरा काम है वो क्या था, और उसके हाथ में अंगूठी। उसके बाद बाप ने अपने बेटे को इख्तियार दिया, अंगूठी पहनाई, एक आला दर्जा, एक आला जो है वो अपने बेटे को अज़मत देते हुए बाप हमें कबूल करता और हमें क्या करता है, इख्तियार देता है। और उसके बाद लिखा है, और पाँव में जूती पहनाओ। और फिर बाप हमें अपनी खुशखबरी फैलाने के लिए अपने कलाम मुक़द्दस को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाने के लिए सुलह का जूता पहनने का हुक्म देता है। जब हम गुनाहगार होते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छुपाते नहीं, तो तब आसमानी बाप हम पर शफ़क़त करता है, अपने रहम को हम पर जारी करता है और हमें इख्तियार बख्शता है, हमें वो लिबास देता है, हमें वो क्या करता है, पाँव में जूती पहनने का हुक्म देता है। और उसके बाद लिखा है कि और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। और ये खुशी मनाना क्या है, खुदा कुर्बानी पेश करता है और कुर्बानी बाप ने अपने बेटे की सूरत में पेश की है। लिखा है कि सलीब पर बेटे ने हर उस जान का फ़िदिया दिया, हर उस शख्स का फ़िदिया दिया जो गुनाहगार थी, जो बाप से दूर थी, जो बाप से नाराज़ थे, जो बाप से अलग थे। बाप ने उन्हीं सबों का कफ़ारा देकर उनकी क्या की है, खुशी मनाई है। और आज हम जितने लोग हैं, हमें इस खुशी को हमेशा बरकरार रखना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब ज़मीन पर कोई शख्स तौबा करता है, एक गुनाहगार के तौबा करने की वजह से आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो इस बात की खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने गुनाहों को तर्क करें, अपने आप में शर्मिंदगी और पछतावे को लेकर आए और अपने हर उस गुनाह से, अपनी हर उस रविश से मुंह मोड़े जो हमें खुदा से दूर करती, हमें खुदा से अलग करती और हमें खुदा से जुदा करती है। लिखा है कि बाप की खुशी क्या है कि वो पले हुए बछड़े ज़िबा करता है,
खुशी मनाता है और उसके बाद क्या कहता है कि ये मेरा बेटा मुर्दा था अब ज़िंदा हुआ, खो गया था मुझे अब मिला। और लिखा है कि पास वो खुशी मनाने लगे। तो आज मेरे अजीज़ों, वो बाप आज भी अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार किए हुए हैं। वो आज भी हमें पुकारता, उसका लहू आज भी हमें पुकारता है कि हम वापस लौटें, उस फिदिया की कदर करें। आसमान पर लाखों फरिश्ते इस बात का जश्न मनाएं, हम अपनी इन तमाम बातों को दरक करके उसके चरणों का हिस्सा बने। लिखा है कि जब दुनियादारी की चीज़ों में हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं तो दुनिया हमें कुछ भी नहीं दे सकती। दुनिया में अगर हमें कुछ मिल सकता है तो वो है हमारी बेसुकूनी, हमारा जो इत्मीनान हमारे अंदर है, दुनिया वो इत्मीनान भी हमसे छीन लेती है। दुनिया में क्या है? गम है। जिस्मानी चीज़ों की जब हम कोशिश में रहते हैं, जिस्मानी चीज़ों की जब हम फ़िक्र तरद्दुद में रहते हैं, तब हम बाप से कुछ भी नहीं पा सकते, तब हम खाली के खाली हैं। और जब हम उसमें ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं, तब हम रूहानी बर्तन बनकर उस मसा से चूर हो जाते हैं जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता, जो हमारी ज़िंदगी में से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और आज जिन ज़िंदगियों ने अपने आप में नदामत महसूस की, अपने गुनाहों पर उन्होंने पछताना शुरू किया और उसके चरणों का हिस्सा बने, अपने आप को अलग करके, अपनी परख करके जो लोग वापस आए हैं, बाप ने उन्हें गले लगाया है, बाप ने उनकी सरपरस्ती की है, बाप ने उन पर रहम किया है, बाप ने इस बात की खुशी मनाई है, फरिश्तों ने खुशी मनाई है। तो सो मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरी है कि जैसे मुशर्रफ बेटे ने अपनी ज़िंदगी में खुदा के पास वापस आने का फ़ैसला किया, अपने बाप के घर में वापस आने का फ़ैसला किया और एक अच्छे नौकर की तरह उसने अपना आप अपने मालिक को सौंपना शुरू किया। एक बाप के रिश्ते से उसने एक मालिक का रिश्ता अपने बाप को दिया कि जैसा वो चाहे मेरे साथ करे, अब मैं एक नौकर बनकर ज़िंदगी बसर करूँगा। तो आज हमें एक ऐसे नौकर बनने की ज़रूरत है, एक ऐसे जो है वो इकरार करने वाले की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है कि अपने गुनाहों का इकरार करो या फिर मरो। तो आज मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम इकरार करने वाले बने ताकि हम मरने से, उस मौत से छुटकारा पाए जो हमारे ताक़ुब में है, जो हमारा पीछा किए हुए है और जो हमें हलाकत की जानिब लेकर जाती है। और बद चलनी में जब हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो तब मुसीबतें हमारी ज़िंदगी का गहराव करती हैं, तब शादमानी हमसे कोसों दूर हो जाती है, तब रोटी और पानी भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल बन जाता है कि हम अपना पेट ही पाल सकें। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ चलने वाले बने, अपने गुनाहों पर पछताने वाले बने, तौबा करने वाले बने और खुदा के साथ रफ़ाकत रखने वाले बने। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।